I couldn't do it. Like, not because I was facing issues, but because I couldn't find time to do it. So I did some of it, but पूरा नहीं कर पाई. Okay. Okay, no issue. So try कीजिए. So अभी आप लोगों ने guys देखा है SAS, right? Yes, sir. Okay, just give me a second. Give me a second. गाइस ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. तो मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाया था कि एस क्राइटेरिया का क्या मतलब है? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया गाइस. ठीक है, देन वी हैव टू डू अनदर पार्ट दैट वी कॉल्ड ASA क्राइटेरिया. ओके, सो आप इसको नोट कर लो. प्रूफ इसका नहीं आएगा. ओके, so we will not look into the proving, but we will just understand what are the criterias. So this is ASA criteria. So please make a note. ASA कहता है, मतलब simple नाम है, it is angle side angle, right? Yes, sir. Yes. So please make a note of it. Angle side angle criteria. इसमें कहता है कि if your two angles and one side of a triangle is corresponding, or you can say it's equal to the another triangle, then both the triangles must be congruent. Okay, I will take one example here. You can just imagine, suppose I have this triangle. Can you see this triangle? Yes, sir. Okay, and I have drawn another triangle here, and I'm giving the name here, suppose A, B, C, and this is I have given PQR. Okay, so angle side angle means if I talk about here that angle B is equals to angle Q, angle B is equals to angle Q, side is this side, so I can say AB is equals to PQ, and angle A is equals to angle P. Angle A is equals to angle P. If we are getting angle side angle, अच्छा एक चीज और ध्यान दो, ये angle side angle coming in one series, angle side angle, ऐसा नहीं हो रहा कि मैंने ये एंगल लिया, ये साइड ले लिया और ये एंगल ले लिया. ऐसा हो रहा है क्या? अनिक, सना, can you hear me? Yes, sir. Yes, I'm not taking ये एंगल this side और this angle. Now सीरीज में है, मतलब ये एंगल के बाद जो साइड आएगा वही लेंगे और इस साइड के बाद जो एंगल आएगा वही लेंगे गाइस, तभी ऐसा होता है. अदरवाइज आप ऐसे बोल दोगे कि सर मैंने ये एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया और ये वाला साइड ले लिया, नहीं तो वो एंगल साइड एंगल नहीं हुआ, वो एंगल एंगल साइड हो गया. वो क्या हो जाएगा जी? एंगल एंगल साइड. वो दूसरा क्राइटेरिया हो जाएगा जो आप बोल रहे हो. तो याद रखना, जिस तरीके से नेमिंग्स यूज होता है हम उस तरीके से एंगल एंड साइड भी फाइंड आउट करते हैं. तो देखो ये क्राइटेरिया है ASA, एंगल साइड एंगल. तो एंगल के बाद जो लगा हुआ साइड है वो, और उस साइड के बाद जो लगा हुआ एडजेसेंट एंगल होगा वो हम उसको लेंगे. इज इट क्लियर? Yes, sir. So can you wait for a minute? Yeah, sure. Yes. So can we take it? It doesn't have to be like ABC. Can it be like CAB, CBA? Can the order be like CBA also? Or does it have to be like from the left side? Order, so here we can say
ABC, here we can say what? ABC is, I will write down here for you. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. You can say in this manner also. Okay, तो अब ये देखो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि एंगल A जो है वो P के बराबर है, एंगल B जो है वो Q के बराबर है, राइट? Yes. क्लियर? ओके. So should I draw the figure also? Noted guys, each and everything? Yes. So should I draw the figure also? Yes, yes, फिगर जरूरी है. यहाँ पे फिगर और जो मैंने मार्किंग की है वो भी कर लो. ओके. Yes, sir. यहाँ पर खुला, ये कैसे निकाला था? दिखाओ. So guys, done this part? Yes, sir. 1 second. Okay. खींचो इसे. देखो ये पूरा पार्ट. हाँ, वो कहाँ गया? तुम तो ये खोले थे ना यार. मत करना, पकड़ जाएगा. खींचो. Done, sir. Give me a second, guys. Yes, sir. देखो इसको, दूसरा वीडियो देखो. या दूसरा वीडियो देखो कोई. Okay guys, so we will proceed now. So ASA is done with you, right? Okay. Yes. Next we have SSS criteria. What criteria we have? SSS criteria, side, side, side. So you should make a note for it. और हम इसका problems भी करेंगे. So problems में basically clear होगा कि हम कैसे deal करते हैं, right? So आप इसको note down करो SSS को. Triple S है ये.
Done, guys? Just a second, sir. Okay. Yes, sir, done. Done, sir. Okay, give me a moment. I'm giving you other one that is called RHS. You have to make note for that. And then we will go for problem. RHS may right angle, hypotenuse, and one side we consider basically. Okay, Yeah. guys. So आप इसको note down करो, and then we will move for next part of it. Noted, guys? No, sir, just a minute. Okay. गलत जगह बैठ रहा, वहां नहीं, मिडिल में जाएगा. पीछे जोर से खींच लो. इसका काम है सीढ़ी का. Sir, done. Okay, fine. Now we will go for a problem. Sana, are you done? 1 second. वहां से स्क्रू को खोल लो. वो तो केस खोल दे रहा. Done. So shall we move? Yes, sir. Yes. Okay. I have a one question here, and then we will see how to solve that one. Okay. First हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे कि दिया क्या है. So please see the question. Please see the question. What is given here? So basically, we have to prove if an angle, if a triangle is isosceles, and we have
The fact that the bisector of the vertical angle of the triangle. In this So case, basically, triangle is cut in two parts by a okay. bisector. In this case, they are saying bisector is given to us, right? Yes, sir. Okay. So bisector they have given us, and nothing they have given, right? Yes, sir. Okay, that is fine. And they're asking prove that they are isosceles, correct? Yes, sir. Okay. Sir, I didn't understand what they mean by vertical angle. वर्टिकल एंगल, बाइसेक्टर वर्टिकल एंगल मतलब कोई भी एक एंगल ले लिया ना हमने ट्रायंगल में. Okay, I will just draw here one triangle. Just a moment. Can you see I have drawn a triangle here? Yes, sir. So ये ट्रायंगल मान लो हम, अच्छा मैंने थोड़ा सा इसको ना ठीक कर देता हूँ. यस, आपके लिए. ओके, अब इसमें से मैंने मान लिया जी ये ए है, ये बी है, ये सी है. कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, हमने ये मान लिया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. अभी चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं. सो हाउ वी डू इट इज अ चैलेंज फॉर अस. ओके, ओके, गिव मी अ मोमेंट. मैं इसको थोड़ा सा, होल्ड अ सेकंड प्लीज. इसको थोड़ा सा मैं अप ले लेता हूँ. ओके, गिव मी अ मोमेंट. दे आर सेइंग बाइसेक्टर ऑफ वर्टिकल एंगल, तो कोई भी बाइसेक्टर ले लेते हैं हम. एंगल ए का बाइसेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे, राइट? सो आई एम Yes. जस्ट गोइंग टू ड्रॉ हियर बाइसेक्टर. कहाँ गया? ओके, एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा थिक कर दूं. लेट मी, ओके, ये हो गया जी बाइसेक्टर हमारा. कैन यू सी दैट? Yes. Yes. बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है? It divides the Triangle into two equal parts. Okay, so it will divide in two equal parts, right? Yes, sir. Just give me a second please, give me a second. अभी देखो ये टू इक्वल पार्ट हो गया. अब हमको क्या क्या गिवन डेटा है बताओ. So given is that bisector. ट्रायंगल एबीसी है, राइट? Yes. एंगल ए इज अ बाय, इस पॉइंट को जी मान लेंगे हम. एंगल ए इज अ बाइसेक्टर, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, एंगल ए बाइसेक्टर हो गया. दैट मींस यहाँ तक गिवन डेटा हम छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अच्छा, वी नो वेरी वेल ये बाइसेक्टर होगा, so it will divide into equal halves, this and this, right? Yes, sir. BD will be equals to GC. एक चीज तो ये मालूम हमें है, ठीक है. अब हमको प्रूव क्या करना है? For to proving we need to prove AB is equals to AC, क्योंकि अगर ये दोनों साइड अगर हमने प्रूव कर दिया so it will become isosceles, right? करेक्ट? Yes. अच्छा, एक काम करो, टू प्रूफ हो गया. अब हम एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हम कुछ लिख लेते हैं. एंड कंस्ट्रक्शन में वी विल डू हियर कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में आप लोग लिखोगे प्रोड्यूस एडी. कैन यू हियर मी? Yes, sir. मैं अपलोड कर देता हूँ, सेम चीज आप लिखोगे. सो फॉर कंस्ट्रक्शन यू हैव टू राइट ऑन दिस. इसका मतलब ये हो जाएगा, फिगर जो है वो कैसा दिखेगा. आई विल जस्ट शो यू द पिक्चर. दिस इज
B. Okay. पहले आप ये कंस्ट्रक्शन लिख लो, then I will show you the picture. और कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा। ये भजिया बता रहा। नोट हो गया कंस्ट्रक्शन? Yes, sir. 1 second. Okay. हमको रैम चाहिए ना, तो रैम जिधर रहेगा वही खोलेगा ना, इधर रैम होता नहीं है शायद। Done, sir. ओके डन। ओके आप एक काम करो, उसके बाद ये जो पिक्चर है जो मैं अपलोड करूंगा, यू हैव टू ड्रॉ दैट वन। सो प्लीज ड्रॉ दिस पिक्चर। कैन यू सी द पिक्चर? ऊपर में एक ट्रायंगल है, बाइसेक्टर आप देख रहे हो? Yes, sir. उसके बाद इन्होंने क्या किया है, दे हैव जस्ट डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है, और यहाँ से ये और इसको ड्रॉ कर लिया है। सो प्लीज डू दैट। Sir, should we draw this? यस टेल मी। Should we draw this? यस Okay, sir. Sir, done. Yeah, just give me a second. So Sana, are you done with this? I can't see the labeling clearly. Labeling में आप देखो ऊपर ABC है, right? Yes, sir. I will do again. A, B, C, ये वाला जो बाइसेक्टर आया था वो पॉइंट हो गया D, नीचे में E। बस अभी आपको ये लेबल यही करना है, nothing कर दिया. else. कर दिया? Yes, sir. हाँ ऐसे निकालो। हाँ just give me a second. So यहाँ तक कर लिया आपने, ठीक है। अब आप एक काम करो, अब आपको कौन कौन से ट्रायंगल्स, एक तो कंस्ट्रक्शन से बना लिया हमने, राइट? Yes, sir. कंस्ट्रक्शन में हमने साफ साफ लिखा ये है कि AD मस्ट बी इक्वल्स टू GE। अगर आप ये देखोगे कंस्ट्रक्शन में AD मस्ट बी GE, राइट? Yes, मतलब sir. according to this we can see here this AD, I will just show you here guys, this AD is equals to GE। ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्शन में बनाकर रख लिया है अपने पास, राइट? अब हम एक काम करते हैं, हम किस दो ट्रायंगल्स को प्रूव करेंगे? हम ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो गाइस आप? कैन यू सी दैट? Yes, sir. एंड कैन यू सी दिस ट्रायंगल? Yes, sir. हम इन दोनों ट्रायंगल को प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। Yes, sir. अंडरस्टैंड?
Yes, sir. ओके अब इन दोनों कॉन्ग्रुएंट को प्रूफ फिगर देख रहे हो आप लोग, राइट? फिगर Yes. देख रहे हो आप लोग। अब चलो वर्कआउट करते हैं जी कि कैसे कैसे हम इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आई विल राइट ऑन द नेम प्रूविंग प्रूफ। सबसे पहली चीज हमें क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूव triangle ABD. Can you see that? Yes, sir. And we have to take triangle ECD. हमको ये दोनों ट्रायंगल प्रूव कर रहा है। गाइज यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि हम कैसे नेमिंग्स पे बहुत ध्यान देना। नेमिंग्स देखो मैंने ECD लिखा है, मैंने DC नहीं लिख दिया है। DC लिख दूंगा तो कोई और मतलब हो जाएगा। क्लियर है? लास्ट क्लास में बताया था आप लोगों को, राइट? Yes. अब देखो, अब हमारे पास सारे थ्योरम्स हमारे पास हैं, हम उनका यूज करके कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली चीज की हमको दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि AD इज इक्वल टू D हमने ले रखा है, राइट? किसी को Yes. प्रॉब्लम? No, sir. ओके दूसरी चीज क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको BD इज इक्वल टू DC मिला हुआ है। अगर आप देखो स्टेटमेंट, यहाँ पे हमने BD इज इक्वल टू DC बोल रखा था। बाइसेक्टर बनाने के कारण, बाइसेक्टर जब बनता है तो नीचे के साइड क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं, बताया था आपको। Yes, sir. तो उसकी मदद से हम ये वाला साइड BD इज इक्वल टू DC लिख सकते हैं, इक्वल है। कैन यू सी दैट? Yes, sir. अगर मैं ये फिगर को थोड़ा सा क्लीन कर दूं आपके लिए तो देखो मैं क्या यहाँ लिख रहा हूँ, जस्ट गिव मी सेकेंड। ये तो E है और ये C है, ठीक है? ये वाली लाइन इसके इक्वल हो गई गाइस, करेक्ट? और ये BD इज इक्वल टू DC, ये इक्वल हो गया गाइस। So it has to be equal because if it's bisecting, then the sides have to be equal, right? यस, बाइसेक्टर अगर बनता है तो बेस इक्वल में डिवाइड हो जाता है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा, तीसरा क्या है गाइस? कैन यू सी दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी अपोजिट एंगल्स? कैन वी से दैट? Yes, sir. सो अगर देखो तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल ADB is equals to angle EDC, vertically opposite के कारण इक्वल हो गया। अब देखो मेरे उस पे पॉइंटर पे ध्यान देना, ये साइड है जी, एंगल है जी, साइड है जी, तो कौन सा? SAS क्राइटेरिया मिल रहा है मुझको। Yes, sir. साइड के बाद कौन सा आया? एंगल आया, और एंगल के बाद फिर साइड आ गया। तो ये किस क्राइटेरिया से हमने इसको प्रूव किया? Yes, yes. So we have proved triangle ABD is congruent to triangle ECD by SAS criteria. अब ये congruent हो गया। अब एक बात बताओ, congruent हो गया ये दोनों, so that means each angle and मतलब angle 1 जो है वो angle 3 के इक्वल हो जाएगा, right guys? और AB will be equals to EC हो जाएगा, होगा या नहीं होगा बताओ? Yes. क्योंकि congruent का मतलब सब कुछ इक्वल, so we can say if everything is equal, so AB is equals to EC by CPCT. by CPCT का मतलब congruent प्रूफ कर दिया। congruent प्रूफ करने के बाद मैं यहाँ कह रहा हूँ कि AB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? EC के इक्वल हो जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. Okay. And we know very well angle 1 जो है वो angle 3 के इक्वल हो जाएगा by CPCT। मतलब congruent प्रूफ कर दिया, उसके बेसिस पे हम ये बात कह रहे हैं, राइट? करेक्ट? Yes, sir. Yes. और दूसरी चीज, हमने पहले ही बाइसेक्टर बनाया था, तो बाइसेक्टर से एंगल 1 जो था वो एंगल 2 के इक्वल था। Yes, sir. So therefore angle 2 will be equals to angle 3. Can we say that? So because angle 1 जो है वो 3 के इक्वल है और एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 3 के इक्वल नहीं हो जाएगा? yes, sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो यहां से बात समझ में आई कि
EC जो है वो AC के भी इक्वल होगा। Therefore EC will be, क्योंकि एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गए अब, राइट? सो EC जो है वो AC के भी इक्वल होगा। नाउ AC के इक्वल हो गया। अब देखो सिंपल सी बात, AB जो है वो EC के इक्वल है और EC जो है वो AC के इक्वल है। So can we say that AB is equals to AC? Yes, sir, we can. Hence it is isosceles. Hence last time लिखना पड़ेगा मुझे, give me a moment. Hence triangle ABC is isosceles. इसको आप लोग एक बार फिर से रीड करो, एक बार में समझ में नहीं आएगा, तो जो भी बातें मैंने यहाँ लिखी हैं प्लीज रीड वंस मोर राइट नाउ। Yes. हाँ, मुझे मालूम है एक बार में नहीं समझ में आता किसी को, आई अंडरस्टैंड। ये टॉपिक आप लोगों के लिए टफ जरूर रहेगा गाइस, सो आप लोग की मेहनत लगेगी। आई विल हियर फॉर हेल्पिंग, लेकिन मेहनत आप ही को करनी है। ओके, Yes. क्लियर है सना? सना तो मुझे अभी तक CPCT नहीं समझ में है। CPCT समझ में नहीं आया? ओके, How do we apply CBCD? That's not. Yes, sir, exactly. I know what it means, but like, how do we apply it in like a question? कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब हो जाता है? Same, equal. कॉन्ग्रुएंट में कह दिया जी कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा, Yes, sir. राइट? करेक्ट? तो जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा तो वन पार्ट ऑफ द ट्रायंगल विल बी इक्वल्स टू द अनदर पार्ट ऑफ द अनदर ट्रायंगल। Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि जब मैंने इसको प्रूव कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ये कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के, राइट? तो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा बताओ? Angle 3. एंगल 3 कैसे मालूम चला? कैसे मालूम चला? कहीं प्रूफ किया क्या आपने अलग से? नहीं प्रूफ किया ना, बट आपने ये मालूम है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। आपको ये मालूम है क्या कि ये कॉन्ग्रुएंट है? तो कॉन्ग्रुएंट है जिसके कारण आप कह रहे हो ना कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, राइट? Yes, sir. तो दैट इज व्हाई यू आर राइटिंग CPCT। अब दूसरी चीज, AB इज इक्वल्स टू EC, कहीं आपने प्रूफ किया है क्या कि AB इज इक्वल्स टू EC है? लेकिन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया आपने कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट के कारण आप कह रहे हो जी कि ये जो है वो बराबर होंगे। क्लियर है? Yes. अब एक एग्जांपल मैं देता हूं, सिंपल सी बात, आपके ब्रदर आपके सिस्टर जो भी हैं, राइट, उन पर कहीं मोहर लगी है क्या कि वो आपके ब्रदर एंड सिस्टर है? No, sir. कैसे कहते हैं कि आप कैसे बताते हो कि वो आपके ब्रदर एंड सिस्टर है? बताओ मुझे। अगर आपको मैं खड़ा कर दूं आपके ब्रदर सिस्टर के साथ में, ठीक है, तो हाउ यू विल डिफाइन दैट दे आर और शी इज माय सिस्टर और ही इज माय ब्रदर? बताओ। Because of the family resemblance. बिकॉज ऑफ फैमिली, सेम फैमिली में आपको, राइट? तो आप ये बोलोगे ना कि मैं भी उस फैमिली से हूं और ये भी उसी फैमिली से, उसी पेरेंट से है, राइट? दैट सेम पेरेंट होने, तो सेम पेरेंट से होने के कारण यू विल बी ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसे ही लोग बोलते हैं, राइट? और चेक करने के लिए आईडी कार्ड पे लिखा रहता है, करेक्ट? तो सेम वैसे ही ये एक पेरेंट हो गए, दो फैमिलीज हो गई। क्या हो गया? ये दो फैमिलीज को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया। अब दो फैमिलीज को जब इक्वल प्रूफ किया तो ये बॉय और ये बॉय इक्वल हो जाएगा। कैसे? फैमिली बराबर है जी, तो हम वही उसी फैमिली से ले रहे हैं ना नेम, तभी तो हम लिख रहे हैं CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हम अलग से प्रूफ नहीं कर रहे, हम यही कह रहे हैं कि ये उस फैमिली का है जिसके कारण हम इसको इक्वल बता रहे हैं। क्लियर है भी CPCT का मतलब? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देने से हमें ये राइट मिल जाता है कि हम उसमें बता सकें कि कौन किसके इक्वल होगा। हम अलग से प्रूफ नहीं करने जाएंगे,
हम वहीं पर लिख देंगे कि जी ये दोनों बराबर फैमिली से हैं, तो ये वाली साइड इसके इक्वल तो आएगी, राइट? एंड द सेम थिंग वी आर डूइंग राइट नाउ. क्लियर? Yes, sir. ओके, सो मैं आप एक काम करो, जो भी चीजें मैंने अभी यहाँ लिखी है बोर्ड पे, प्लीज मेक अ नोट राइट नाउ. Done. You're done. अच्छा, दोबारा से पढ़ो भी, डन नहीं, दोबारा से पढ़ो एक एक चीज. यू विल टेक 1 मिनट, रीड इट. पहले ये मुझे बताओ, आप लोग पढ़कर समझकर कि कॉन्ग्रुएंट कैसे किया. ओके, रीड करो, बताओ कॉन्ग्रुएंट कैसे किया. So congruent किया by proving that the sides are equal to the sides and the angles are equal. Okay, By just give me a second. Just give me a second. Okay, guys. So is it clear now? yes. Okay, so taking another problem. बहुत छोटा सा प्रॉब्लम मैं देने जा रहा हूँ. ओके, तो give me a moment. Okay. चलो एक काम करते हैं हम ना, ये देख लेते हैं. नहीं, एंगल साइड पे तो बनाना ही नहीं है जी. गिव मी सेकंड. यस, आई एम टेकिंग वन प्रॉब्लम. गिव मी मोमेंट. छोटा प्रॉब्लम नहीं है कोई. ओके, चलो आई एम गिविंग वन प्रॉब्लम हियर. Uploading. Give me a second. I'm uploading it right now. ये 3 parts में आएगा total.
Okay, can you see this question? अब read कर सकते हैं आप, and I'm uploading the figure here. If D is the Please read the question first. So if D is the midpoint of the hypotenuse AC of the right angle triangle ABC, that BD is equal to half of AC. तो इसमें बोल रखा है जी कि ABC is a right angle triangle, right? And we have to prove that BD, ये जो BD है वो half of AC के equal है, right? I don't understand. Question read किया सना आपने? Yes, sir. क्या I'm read saying किया? that the midpoint of the hypotenuse. So that means hypotenuse is the line with the longest value, right? Longest value नहीं, 90 के opposite वाले को कहते हैं. Yeah, मतलब, but it's still the longest, right? It's still the longest. आप नया definition कहाँ से ले आते हो? मुझे समझ नहीं आता. Longest होता है, that is I accept it. Okay. But according to definition, hypotenuse must be opposite to the 90. Okay, sir. Because it always comes in the right angle triangle. ठीक है? Okay. तो याद रखो, hypotenuse जो होता है, it's always opposite to the 90. Longest side I accept. आपने बोल दिया कि हाँ चलो longest side होगा. ठीक है? चलो आगे Yes. next. Next Sir, क्या पढ़ा? Yeah, forgot it. Right. Got एक मिनट, अनिका क्या बोल रहे हो, बोलो. In this figure, angle 1 is equal to angle 2, right? अभी रुक जाओ, फिगर में मत जाओ. अभी हम बस ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं और बीडी की बात कर रहे हैं. ओके. Yes, sir. ओके. सो सना, अब बताओ क्या नेक्स्ट डाउट है आपका इसमें? समझ में आ गया, सर. ओके. Okay, just give me a second. मोमेंट गाइस, आप एक काम करो, ये क्वेश्चन में ये फिगर बनाओ. पहले क्वेश्चन नोट डाउन करो और फिगर बनाओ. इस पे क्यों रखो, इस पे क्यों नहीं रखो? मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा ये अंदर वाला. अब कैसे निकल गया? हाँ पता नहीं. नहीं, यहाँ पिन 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 नहीं फंस रहा नहीं. हाँ तो ये देखो ना लगा हुआ है इसमें, ये यहाँ पिन एक पिन इंसर्ट होगा. दबा के निकालना. क्या दबा के मतलब? तो दबा के निकालना. इसको दबा के निकालना कैसे? अरे कैसे क्या, इसको ऐसे दबाना था नीचे की तरफ तब खींच. अच्छा चलो साइड रखो इसको. गाइस आपका नोट हो गया? 1 second, sir. Yes. Okay. उसके बाद आप नोट करोगे गिवन डेटा. ऑलवेज याद रखना, ये जो ट्रायंगल चैप्टर है इसमें जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ये ऑलवेज ऐसे ही लिखा जाएगा. गिवन डेटा मतलब ये सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ से आंसर लिखने जा रहे हैं. क्वेश्चन तो मिल गया था, अब आंसर में क्या लिखेंगे
गिवन, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, एंड कंस्ट्रक्शन. These are important things. Okay. Done. Yes guys, done. Okay, कंस्ट्रक्शन भी नोट हो गया. अब देखो कंस्ट्रक्शन में इसने क्या बनाया, पहले देखो डॉट ट्रायंगल था मिला हुआ ABC और उसमें एक BD बना हुआ था, राइट. देन इन्होंने कंस्ट्रक्शन से एक BD को प्रोड्यूस कराया, मतलब BD को सीधा ऐसे प्रोड्यूस किया और इधर से एक लाइन ऐसे ज्वाइन करा दिया. क्लियर है? क्लियर है गाइस? आई कैन नॉट हियर यू. Yes, sir. One second, I just need to note down the construction. ओके, कंस्ट्रक्शन नोट कर लो जल्दी से. कंस्ट्रक्शन नोट हो गया गाइस? Yes, sir. Done. ओके, अब आप एक काम करो, मैं ना ज्यादा लिखूंगा नहीं, मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको पहले नोट डाउन करो एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू, बिकॉज मुझे लिखनी सारी बातें सेम ही है. तो आप इसको नोट डाउन करो पहले. ओके. So, can I just switch back to the last slide for a second? I just need हाँ, to श्योर note down. श्योर. ये So do we have to draw the arrows and all in the figure or? अरे ये नहीं, ये एरो तो मैंने ड्रॉ किया था. एक सेकेंड, आई विल रब. नहीं, जो फिगर में जितना दे रखा है उतना ही ड्रॉ करोगे. एंड दे आर सेइंग BD इज इक्वल्स टू HE ड्रॉ किया, D ड्रॉ किया इन्होंने. पिन, अरे पिन लगाओ ऐसे करे यार, रुको ना. ध्यान से देर पे निकालो. So you can switch to the next one. Okay. So note down this one first. Good. इसमें देखो.
ये तो स्क्रू जॉइंट मारा हुआ है शोल्डर. जनी एक काम करो. Sir, Yes. what is written after vertically opposite in the after like angle ADB is equal to angle CT? What's that? ADB is congruent to CD. Oh, so the one above that. This one. Vertically opposite. What does the symbol mean? Oh, vertically opposite. Symbol में मत जाइए. Vertically opposite angles. Okay, sir. Vertically opposite angles. Yes, sir. Note हो गया guys? Sir, I did not understand how CPCT comes in here, like how we use CPCT. I will explain. Don't worry. Okay, this is the figure basically. Can you see the figure? Yes, sir. In this figure, what they have given ADB and CDE. So ADB means they are using this triangle and they are using this triangle. Okay, Yes, they are sir. trying to make it congruent. They are trying to make it what? Congruent. अब देखो इसमें क्या क्या है. AD is equals to CD, मतलब ये वाली लाइन इसके इक्वल हो गई, राइट? गिवन ऑलरेडी है हमारे पास. BD ED के इक्वल, दिस मींस दिस वाली लाइन इसके इक्वल, तो दो लाइनें इक्वल हो गई. And Yes. this angle we can say vertically opposite angles, right? So basis of side angle side, देखो side angle side, we can say they are congruent. What we can say? They're congruent. They are congruent. तो अब सिंपल सी बात ध्यान दो. मैंने बोला जी कि ये वाला ट्राइंगल जो है वो इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, कह दिया मैंने. मतलब ये दोनों फैमिली सेम हो गई, राइट? Yes, तो sir. हमने नेमिंग दिया था ए बी डी, सॉरी ए डी बी, और इधर से लिया था सी डी ई. तो एंगल ए के इक्वल कौन होगा बताओ? So angle A is equal to angle 2. सी, क्योंकि नेमिंग वो यूज किया था ना, राइट? तो एंगल 1 के इक्वल कौन हो जाएगा? एंगल 2. हमने कहीं प्रूफ किया था क्या कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है? No, sir. कैसे मालूम चला कि एंगल 1 2 के बराबर हो गया? बिकॉज ऑफ दे आर कॉन्ग्रुएंट. Alternate interior. नहीं, वो कॉन्ग्रुएंट है. यहाँ पैरेलल लाइंस वगैरह कहाँ कुछ दिया हुआ है? Okay, sir. They are congruent. That is the reason we are saying. That is the reason we are saying what? That they are equal. अब ये इक्वल कैसे आया? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के कारण मैंने बोला. That's why we can say it is CPCT. Clear है? Yes, sir. And 1 and 2 are alternate interior angle. अगर आप देखो तो ये कुछ ऐसा. Okay, but sir इसका कोई ट्रांसवर्सल नहीं है, कैसे? तो ट्रांसवर्सल ये हो गया ना AC. तो फिर पैरेलल लाइंस. वही तो कह रहा है ये कि 1 और 2 अगर इक्वल है, दैट मींस ये वाली लाइन पैरेलल कही जा सकती है. Okay. यही बात तो उसने बोला है लास्ट में कि हमको ये दोनों इक्वल मिल गए, तो ये दोनों इक्वल मिल गए तो हमें लगता है कि ये दोनों पैरेलल भी होंगे. सो दे हैव सेड द सेम इन दिस. अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलो मैं आगे का पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, अभी ये समझ आया कि कैसे हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, राइट? सो द नेक्स्ट पार्ट आई विल टेल यू टुमारो. ओके? Yes. ओके, बाय, टेक केयर. Thank you, sir. Bye. या बाय. Bye, sir.